Good morning, all the participants. We shall be starting the session with very shortly, within 1 minute. I request Kohli sir to please make the co-host to our speakers, that is Mr. Dinesh Khare sir, Dr. Priyanka Moshammar ma'am, and Mohesh Srivastav sir, and all the coordinators as well. Yeah, on the behalf of SIRT and IIC, I welcome Dinesh Khare sir also. Our director sir, head of the institution, has also joined on the behalf of IIC. We welcome you, Rajiv sir. Kohli sir, please. Yeah. We are waiting for one more expert, Dr. Priyanka ma'am. Mohesh Srivastav sir has also joined from the Monimika Industries. Then Kohli sir, please make co-host to sir also, so that we can proceed the session and start the session. Mr. Dinesh Khare sir is co-host now. Yes sir, thank you sir. And sir, Rajiv Srivastav sir also has joined, so please make co-host to him also. Yes, sir, I done. Yes. Thank you, sir. Priyanka ma'am has not joined. She'll be joining the session shortly. Meanwhile, Dinesh Khare sir has also joined, Mohit sir and the director sir. I welcome you all on the behalf of SIRT, the SAGE group, in this panel discussion on innovation and startup founders. And with us, we have the eminent speakers, that is Mr. Dinesh Khare, the regional coordinator for the SEDMAP, Dr. Priyanka Mushamar, she'll be joining shortly, the managing director of Vayu, and Mr. Mohesh Srivastav, the CEO of Monimika Industries Indore. Uh, and with your permission, sir, we have a small, meanwhile, all the other participants are joining. We have a small video about our group. With your permission, can we play that? Please go on. Thank you, sir. You're waiting for something? Sir, it is just starting. It's taking some time. I apologize for the time.
Priyanka ma'am has also joined. है? हाँ हाँ बंद कर दिया इसको क्या करना क्या ठीक करना इसका बैकग्राउंड ले रही थी हाँ तो क्यों नहीं रहते, कोई जरूरत नहीं है, नहीं है आपके पास लेने लायक बैकग्राउंड। आप इस पे वो हो जाओ ना। दिनेश खरे सर म्यूट कर लीजिए अपना माइक हाँ Mr. Nirjar Gupta, I have already joined. I am by the name of Vayu One. Yeah, thank you, ma'am. This is the short video, ma'am, about the Sage group, and just playing that. I hope the screen and the audio both are visible to everyone. Yes, sir. Visible, sir. Yeah, this was all about the video of the Sage Group, that how the Sage Group is working towards towards their tagline, that is bringing happiness to the society. That is from school to the colleges, colleges to universities, and universities to the power to real estate, and from real estate to foundation, and at last finally that is the hospitals, and that is shaping and will be nurturing the lives of the people.
Now moving ahead with the session, that is the all about the panel discussion with the innovators and startup founders. And in that we have with us that is Mr. Dinesh Khare from SEDMAP. Before moving ahead, let's have an idea about the IIC, that is Institution Innovation Council, which was formed under the able leadership and the motivation of the Honorable CMD Sir Engineer Sanjeev Agrawal. And after that, the Vice Chairman Dr. Prashant Jain Sir and the young and dynamic both the ED ma'am, that is Shivani Agrawal and ma'am Sakshi Agrawal ma'am. After that, we have a IIC team that is being presided by the Dr. P.S. Rajput, the president of IIC, and after that, the head of the institute, Dr. Rajiv Srivastav sir, and the convener, Dr. Dinesh Kumar Kohli, and with his team, we have the coordinators, 5 different coordinators, that is social media coordinator, Professor Palash Jain, internship coordinator, myself, Nirjhar Gupta, innovation coordinator Dr. Jaikumar Jain sir, IPR coordinator Dr. Irshad Ahmed Khan sir, and startup coordinator Dr. Uday Panwar. And with this, we have the 5 members, that is Dr. Deepshikha Acharya ma'am, Dr. Deepti Khare ma'am, Professor Dilip Jigyasi sir, Professor Niti Shukla ma'am, Professor Ankur Pandey. If we have an idea about the innovation cell, that is the IIC, which is being formed by the Ministry of Education with AICT in 2018 to foster the culture of innovation and startup ecosystem in the educational institute. The role of IIC is mainly to engage faculty and students in innovation and entrepreneurship activities, like to create a vibrant local innovation ecosystem, startup supporting mechanism in higher educational institute, prepare institute for Atal ranking of institution on innovation achievement framework, and establish function ecosystem for screening ideas and pre-incubation of ideas. At last, they develop better cognitive abilities among students. Now it comes to the point that what is the need of IIC model. So if we see, then IIC model is designed to address the some of the challenges like to occasional and unplanned institutional activities with low involvement of top leadership and lack of coherence and absence of synergy in resource mobilization. Also to deployment and underutilization of creative potential of youth, that is students, as a major barrier in educational ecosystem. If we see the global innovation index, then because of this formation of IIC, if we see that we have total 2,511 IICs among the 28 states and 6 union territories, in which 400 universities have established the IIC cell and 1910 colleges, and standalone if we see, then we have 166 institutes. This was all about the IIC. Now I request, my voice is clear. Yes, sir. Yeah, now I request our head of the institution, Dr. Rajiv Srivastav sir, to please have his word of wisdom and enlighten and welcome all these speakers. I think because of some issues, that is not there. Okay, then whenever he'll join, we'll have his words. Okay. Meanwhile, we proceed our panel discussion. That is the first eminent speaker, that is Mr. Dinesh Khare sir, the regional coordinator for SEDMAP. To the all the participants, those who don't have the idea about the SEDMAP, then I'll just give a brief introduction about the SEDMAP. It is the Center for Entrepreneurship Development of Madhya Pradesh. And in span of over 32 years, it has achieved enormous success in the field of entrepreneurship development activities for the upliftment of society in the state of Madhya Pradesh and Chhattisgarh. SEDMAP is also promoted by the state government of Madhya Pradesh and central financial institutions. SEDMAP is also an ISO 9001-2015 certified institution. Today, it enjoys the status of a premier institution for undertaking various entrepreneurship, skill as well as livelihood development activities in the state of MP and CG, that is Madhya Pradesh and Chhattisgarh. The governing body of the institution consists of the bureaucrats, head of nationalized bank of the state,
central and state financial institution, as well as the entrepreneur. Today we are very fortunate to have Mr. Dinesh Khare sir with us, and along with him we have two young entrepreneurs, that is Miss Priyanka Moshmar and Mr. Mohesh Srivastava. Soon we'll have the introduction about them also. First I request Mr. Dinesh Khare sir to please enlighten us. Hello. Good morning, everybody. Good morning, sir. We welcome you, sir, once again, sir. Share the screen. Everybody see the? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. तो हम लोग चालू करते हैं सबसे पहले कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इनोवेशन। ये एक्चुअली में क्या है कि सभी चीजों का पार्ट एक ही है कि हमारे पास जो आइडिया है और जो हम लोग सोचते हैं उसको कैसे ढंग से किया जा सके, क्योंकि आज का जो आपका टॉपिक है वो इनोवेशन के ऊपर है। और इनोवेशन होना सोचने से, आइडिया से आता है, लेकिन उसका पेटेंट कराना, उसको फिर लागू करना, फिर उसको लिए प्रोडक्ट डिजाइन करके, डेवलप करके कमर्शियल वायबिलिटी करना, ये बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। तो अपन यदि बोले कि अपन ने कोई आइडिया अपन ने जनरेट किया है तो उसको फाइनली कमर्शियल वायबिलिटी कराना एक बहुत बड़ा कठिन काम है। और बाकी छोटे क्या कहते हैं, बड़े बड़े जो डेवलप होते हैं, जहाँ R&D होता है, वहाँ तो बहुत सारे लोग काम करते हैं। बड़ा इंस्टीट्यूशन हो, चाहे टाटा हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, बड़ी कंपनियों में तो, कॉर्पोरेट में तो बहुत बड़ा R&D का वर्क होता है। लेकिन एक छोटे उद्यमी को या इनोवेटर को उसको स्टार्ट करना और फिर उसको पेटेंट कराना और उसके बाद उसको कमर्शियल, उसको लोन लेकर वायबिलिटी लेके, लोन लेके स्टार्ट करना और फिर कमर्शियली वायबल कराना और उसके बाद प्रोजेक्ट को रन करना, इट इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्योंकि आइडिया जनरेशन जब हम करते हैं तो ये चीजें हम लोगों के पास आती है कि हम कैसे स्टार्ट करें, है ना। और जब स्टार्ट करने जाते हैं तो बहुत सी गवर्नमेंट फॉर्मेलिटी भी हैं और गवर्नमेंट की जो बायलॉज हैं उसके आधार पे करना पड़ता है। लेकिन अभी कुछ इन्होंने, गवर्नमेंट ने जो स्टार्टअप के लिए वो चीजें की हैं कि वो बहुत उसको अब इनकरेज कर रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से नए लोग आ सकें और कर सकें। उसी को रखते हुए हम लोगों ने बहुत सी चीजें डिजाइन की थी। तो इन चीजों को लागू करने के लिए जब हम करने जाते हैं तो बहुत सी चीज क्या कहते हैं कि तो इसमें जैसे आप स्टार्टअप करेंगे तो बहुत से उसके चीजें हैं कि आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए। स्टार्टअप इंडिया हब है, रजिस्टर्ड थ्रू ऐप है, पेटेंट है, पेटेंट पर से प्रोटेक्शन करते हैं, उसके लिए फंडिंग पैटर्न है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट बना हुआ है, इसके लिए कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है, इनकम टैक्स 3 ईयर के लिए बेनिफिट देते हैं। तो गवर्नमेंट के बहुत सारे टैक्स फॉर हायर इन्वेस्टमेंट वैल्यू करते हैं। बिडिंग एंटरप्रेन्योर क्या है, अटल इनोवेशन एक इनका स्कीम्स है, क्या कहते हैं, मिशन है, उसके ऊपर है। इंक्यूबेटर वगैरह सेटिंग करने के लिए भी पैसा देते हैं। तो ये इनका बहुत सारा चीजें हैं जो कि अपन कह सकते हैं कि इस रूप में रहती हैं कि लोग कर सकें। रिसर्च पार्क है, एंटरप्रेन्योरशिप इन बायोटेक्नोलॉजी के लिए अलग वो दे देते हैं, डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर स्कूल्स के लिए अलग चला रहे हैं, लीगल सपोर्ट दे रहे हैं, रिबेट दे रहे हैं, रूल है, फास्टर एग्जिट है। तो ये जो चीजें चल रही हैं ये डिफरेंट है। अब इसमें अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है और कैसे काम अपन करते हैं, ये बहुत बड़ा पार्ट है। हम लोग सोचने को तो अभी कोई चीज देख के कॉपी कर लेते हैं। हमारे यहाँ जो भी सिस्टम है वो कोई चीज देखा टीवी पर और उसको कॉपी कर लिया, या न्यूज़पेपर में देखा, या कहीं फेसबुक पे देखा तो कॉपी कर लेते हैं। तो हम लोग कॉपी पेस्ट में तो बहुत माहिर हैं। लेकिन एक्चुअली यदि बोले कि हमारे यहाँ अभी भी उस चीज में, इनोवेशन में या कोई चीज करने में और उसको कमर्शलाइज करने में और उसको फाइनेंशियल वायबिलिटी करने में बहुत अच्छा समय लगता है। और अभी लोग आ रहे हैं उस फील्ड में, आइडिया लेके आते हैं। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, करीब बोलेंगे डिफरेंट आइडिया लेके आते हैं। कुछ आइडिया वेक भी लगते हैं, लेकिन ओवरऑल वे में आइडिया जनरेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है। और आइडिया जनरेशन के लिए कोई जरूरत नहीं होती है कि आप क्वालिफिकेशन की बात करें या कोई चीज की बात करें। आइडिया किसी को भी जनरेट हो सकता है।
ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सब देखते सभी हैं, लेकिन उस आइडिया से अपन को सीखने वाली बात होती है और जनरेशन वाली बात होती है। तो वो चीज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आइडिया जनरेशन कैसे हो सकता है। अब उस आइडिया जनरेशन के बाद हम उसको कैसे समराइज कर पाते हैं, कैसे उसको स्टार्ट कर पाते हैं और कैसे लोग करते हैं। तो इसका कहने का तरीका ये होता है कि जिसने जनरेट किया है आइडिया, जिसने उसको समराइज किया, जिसने कमर्शियल वायबल किया है, उसको देखने पर ही समझ में आता है कि अपन को कैसे होना चाहिए। तो आज भी जो हमारे बीच डिस्कशन है वो दो चीजों का है। एक हमारे बीच वायु इंडिया से मैडम प्रियंका मोक्षकार है, जो बेसिकली इस फील्ड में कैसे आई हैं और कैसे स्टार्ट किया है और उन्होंने कैसे आगे बढ़ा, उनका आइडिया क्या था, आइडिया जनरेशन कैसे हुआ। मैं खुद नहीं बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वही बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं हमारे बीच में पिछले करीबन 6-7 साल से जो काम कर रही हैं और उनका जो अनुभव है, तो मैं मैडम प्रियंका मोक्षकार जी को आमंत्रित करता हूँ। वह अपने प्रोजेक्ट और उसका कैसे आइडिया जनरेशन हुआ, कैसे उन्होंने पेटेंट कराया, कैसे उनको फाइनेंशियल कराया, कैसे उसको कमर्शियल वाइबल करा और कैसे उसको अभी वो सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं और आज के कार्यक्रम में उनका स्वागत करता हूं उद्यमता विकास केंद्र की ओर से और सेज यूनिवर्सिटी की ओर से। थैंक यू सो मच खरे सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर ने जो बताया कि इनोवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। जब हमने कंपनी शुरू की थी 2015 में, तो उस वक्त हमारे पास एक पेटेंट था और वो पेटेंट करवाना भी उस वक्त बहुत टफ था, बिकॉज जब 2008 में मेरे हस्बैंड जो कि फाउंडर है इस कंपनी के, उन्होंने जब इसके बारे में सोचा और ये इन्वेंशन हुआ और हमने इसको फाइलिंग का सोचा कि सबसे पहले हम इसको पेटेंट कराएं, बिकॉज आईपीआर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। आप किसी आइडिया पे काम करें और कोई बड़ी कंपनी उसको कॉपी कर ले या आपका ब्रांड नेम कोई कॉपी कर ले, इस चीज को लेकर हम लोग बहुत क्लियर थे कि ये आइडिया बहुत सक्सेसफुल होगा फ्यूचर में। तो एक एंटरप्रेन्योर का सेल्फ कॉन्फिडेंस ही उस आइडिया को आईपीआर की तरफ लेके जाता है। बिकॉज हम लोग कॉन्फिडेंट थे, हम लोगों ने 2008 में ही सोचा कि हम इस आइडिया को पेटेंट करवाते हैं। आइडिया कंप्रेसर बेस्ड कूलिंग सिस्टम का था, जो कि एसी को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, एसी से 90% तक इलेक्ट्रिक सेविंग देता है, ग्रीन टेम्परेचर 24 डिग्री मेंटेन करता है, पानी कूलर के कंपैरिजन में 60% कम यूज करता है, फ्रेश एयर बेस्ड है, जो कि आज के कोरोना टाइम में रिक्वायरमेंट हो गई है कि एसी मत चलाइए, फ्रेश एयर बेस्ड सिस्टम्स चलाइए। तो इतनी सब खासियत होने के बाद, उसके अलावा जो सबसे बेसिक खासियत है कि कूलर में हम बारिश में चिपचिपाहट होती है, हमारी मशीन से नहीं होती है। तो ये सारे खासियत के साथ में वी वर श्योर कि दिस आइडिया इज गोइंग टू बी अ माइलस्टोन इन फ्यूचर। एंड उस कॉन्फिडेंस के साथ में 2008 में जब हमने आईपीआर पेटेंट के लिए कोशिश की, यू विल नॉट बिलीव, देयर वाज नथिंग। मतलब गूगल पे टाइप करने पे यूएस की साइट्स, मिडिल ईस्ट की साइट्स, पर इंडिया वाज नॉट हैविंग। आईपी की जो इंडिया की साइट थी उस वक्त इट वाज हॉरिबल, कांट इवन यू नो वी कुड नॉट गो थ्रू इट, अटॉर्नी नहीं मिल रहे थे, इट वाज वेरी टफ। बट फाइनली बिकॉज आई वाज एन एकेडमिशियन, प्रणव ने कहा तुम्हारा ये पढ़ाई लिखाई का काम तुम्हारा है, इन्वेंशन मैंने कर दिया है। एंड प्रणव इज अ ड्रॉप आउट इंजीनियर, so he did not completed engineering. तो जैसा खरे सर ने कहा, qualification is not the stamp to become an entrepreneur. You know, you need to have a great idea and then you need to have the confidence. Anyways, जब 2013 में हमारा patent publish हुआ, we thought of starting this company. We were very clear that this company is not going to be a local Indore-based small company. It has to be a national, international level company from day one. Funding was an issue, but then बहुत सारा परस्यू करने पे, बिकॉज हमारे पास में पेटेंट हमारा पब्लिश हो चुका था, वी गॉट फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट CGTMSE स्कीम, विच इज अ क्रेडिट गारंटी स्कीम। बिकॉज पहला फंड हम हमारा घर बेच के ही ला चुके थे, बिकॉज वी डिड नॉट स्टॉप। हम कभी भी रुके नहीं है सोच के कि पैसा आएगा तो काम शुरू करेंगे, तब तक जॉब कर लेते हैं। बिकॉज प्रणव जी वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन दैट दो नाव में सवारी नहीं करेंगे प्रियंका, कि इधर जॉब करते रहेंगे, इधर आइडिया चलेगा, जब आइडिया चलेगा तो हम यू नो बिजनेस करेंगे। नो, वी नीड टू गिव 200% टू आवर बिजनेस एंड टू आवर आइडिया, बिकॉज दैट शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इन द आइडिया। मुझे ऐसा लगता है जो एंटरप्रेन्योर दो नाव में सवारी करते हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि उनका आइडिया चलेगा भी कि नहीं चलेगा। You know, so that is why they keep on, you know, having two
birds in hands. So that ways we were very clear. हम दोनों ने जॉब छोड़ दी, हम दोनों ने हमारा घर बेच दिया, पहला पैसा हम हमारे असेट्स से लेकर आए. We kept on moving, मार्केट टेस्टिंग करना शुरू किया. मार्केट टेस्टिंग में बहुत फंड्स इन्वॉल्व हुए, मशीन्स चाहिए थी, बैंक्स, CGTMSE में बैंक्स बहुत जल्दी फंड नहीं करते हैं, बिकॉज देयर इज नो कोलैटरल. सो वी स्टार्टेड परसुइंग देम, और एक बैंक से दूसरे बैंक फाइल जाती थी. टुक सम टाइम, बट आफ्टर अराउंड 1 year वी गॉट द फंड ऑफ कंप्लीट 1 crore, बिकॉज उस वक्त CGTMSE की लिमिट 1 crore थी. By that time we had done all the homework. तो हमारी मशीन्स कहाँ से लेनी है, कितनी कैपेसिटी की लेनी है. आगे के 10 साल तक मशीन की कैपेसिटी इतनी है कि हमारी प्रोडक्शन कभी भी शॉर्टफॉल में नहीं गिर सकती है. So we never thought कि 1 साल के लिए तो बस छोटी सी मशीन चाहिए, तो छोटा सा खर्चा करके छोटी मशीन. नो, नेवर. Also I would like to add कि इसमें आप लोग जितने अगर यंगस्टर्स सुन रहे हैं, I was always in touch with all government institutions like SEDMAP, like DIC, जिनसे हम कांटेक्ट में थे कि स्कीम क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम मशीन खरीद रहे हैं, क्या हमें सब्सिडी मिल सकती है. You have to be well aware about your ecosystem. और धीरे धीरे 2015 में तो काफी कम था, जब 2018 में स्टार्टअप स्टैंड अप आया. I was the top 5 company which was registered under Startup Stand Up. We were among the top 5 entrepreneurs with whom Modi ji interacted. So that all becomes a motivation factor for the entrepreneur. I would also like to share कि जब हमें फंड आया, हम लोग 2 महीने के अंदर हमारी मशीन तैयार थी, बिकॉज हमारा होमवर्क हो चुका था. पहले साल हमने 5000 स्क्वायर फीट के रेंटेड प्रीमाइसेस से शुरू किया. ऑर्डर्स बढ़ने लग गए, बिकॉज हमारे बारे में योर स्टोरी ने लिखा, बेटर इंडिया ने लिखा, बिकॉज द आइडिया वाज इनोवेटिव. इट वाज अ सब्स्टिट्यूट फॉर एयर कंडीशनर, ग्लोबल वार्मिंग इश्यूज सॉल्व करता है. तो जब योर स्टोरी जैसे प्लेटफॉर्म्स, बेटर इंडिया प्लेटफॉर्म, कॉर्पोरेट लीडर्स, इन लोगों ने हमारे बारे में लिखना शुरू किया, वी नेवर पेड. I used to participate in a lot of competitions. Many people also told us कि competitions में भी आपका एनर्जी वेस्ट होता है, आप लोगों को इतना, क्योंकि उसमें बहुत डॉक्यूमेंटेशन, और आप जाते हो, प्रेजेंट करते हो. बट बिलीव मी, जो कंपटीशन एक्चुअली कंपटीशन थे और उसमें आप आगे आते हो, तो फिर यू गेट दैट रिकॉग्निशन, जिसकी वजह से फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी मार्केटिंग होती है. सो दैट मार्केटिंग गेव अस ह्यूज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस. Because of that business, in 2 years we realized कि हम हर साल फैक्ट्री का शेड शिफ्ट कर रहे हैं, which is not a good idea because we are putting around 1.5 lakh every year. So we thought of buying our own land. And you will not believe, 2015 में कंपनी शुरू करने के बाद में 2018 में, जबकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत स्टेबल नहीं थी, we always believed कि जब हम खर्चे बढ़ाएंगे तो हम कमाने की भी सोचेंगे. So that's the idea. अगर आप जितना है उतने में चलेंगे तो शायद उस हिसाब से हम ग्रो नहीं कर पाएंगे. Although it was a big decision, we took a land of 1,25,000 square feet. I will also share a video of that facility which is almost ready. हमने धीरे धीरे उसको शुरू किया, और जब शुरू किया तो 2019 में कोविड ने अटैक किया. 2020 सीजन हमारा पूरा बिल्कुल जीरो पे गया. We were growing multiple numbers. हम हर साल डबल फिगर में हमारे टर्नओवर्स बढ़ रहे थे, और 2019-20 was a great fall, क्योंकि हम पूरे टाइम फैक्ट्री बनाने में और शिफ्टिंग में, and then there were a lot of problems in getting that factory ready because हमने टारगेट 3 महीने का लिया and the factory took 1 year to get completed. Funds पूरे stuck up हो गए. There was a lot of huge downfall. So जहां हम डबल फिगर में ग्रो कर रहे थे, हम नेगेटिव जाने लग गए. But then we were sure कि कोई बात नहीं, हमें बस अभी sustain करना है. We don't have to come out of the market. We have to just sustain ourselves. We have to be there. थोड़ा हम करते रहे. Last year we were ready. कोरोना आ गया, हम चुपचाप घर में बैठ गए. But then चुपचाप नहीं बैठे. We started manufacturing. क्या बनाए कि कोविड टाइम में काम आए, क्या बनाए, हम घर नहीं बैठ सकते. We are innovators. So we started studying German technologies. And then we came to know that there is a technology called UV light. Ultraviolet light से कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगस within 2 minutes खत्म हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस से. और हम इंडियंस हर चीज पे पानी स्प्रे कर रहे थे, साबुन में डाल रहे थे,
लिक्विड डाल रहे थे विच वॉज एक्चुअली स्पॉइलिंग थिंग्स अराउंड. हमने लॉकडाउन के पीरियड में रिसर्च किया, डीआरडीओ से बात किया. डीआरडीओ में हमने हमारी कूलिंग मशीन लगाई थी, तो हमारे पास कनेक्ट थे. तो उनके कनेक्ट से हमने यूवी बॉक्स को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लेकर बनाना शुरू किया. जैसे ही लॉकडाउन शुरू खत्म हुआ, वी वर सेलिंग दीज यूवी बॉक्सेस. सो ऑल्दो हमारे मेन सीजन अप्रैल, मई, जून वाज जीरो, we started having sale in July, August, September, October, although it was very small, but better than zero. Then my factory came into shape, and this year, when again Corona started picking up, we had thought कि हम इंदौर में residential machines को proper launch करेंगे, and we will start selling residential machines. Stock था, सब कुछ था, but again this lockdown came, but we took this as an opportunity. राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर, जिसका मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी, मुझे कॉल आया कलेक्टर साहब का, एंड ही सेड कि हमें कोविड केयर सेंटर में आपकी कूलिंग मशीन्स लगानी है, बट हम खरीदेंगे नहीं. एंड आई न्यू कि खरीदेंगे नहीं मतलब इट इज अ ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो कि अभी हमारे पास नहीं है. सो आई मेट हिम एंड आई सेड कि सर व्हाटएवर, जैसे भी रास्ता निकलेगा करेंगे तो हम ही. सो वी वायु इज गोइंग टू चिल दैट एरिया, because they needed fresh air system, they needed low water consumption machine, they needed less humidity machine, they needed less power saving, and we had it all, and they needed a cooling like an AC. So I promised them that we will deliver you 20-degree difference from ambient temperature and all these features. And he said that you have to install. हमारी एक मशीन के इंस्टॉलेशन में 15 दिन लगता है, because पूरी प्रॉपर डक्टिंग होती है लोहे की and all that. And you will not believe, I got 3 days time for 360 ton of installations, and we did meet the deadline again by an innovation which came from Pranav ji ki Priyanka abhi ducting banane ka time nahi hai, let's introduce PP ducts. PP ducts again, we got the copyright. PP duct was great success, और आप बलून जैसे स्ट्रक्चर्स एक वीडियो में देखेंगे जिसमें कि हमने 3 दिन के अंदर वो बलून जैसे स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करके और हमने वो इंस्टॉलेशन को 3 दिन की डेडलाइन में कंप्लीट किया. So I am going to share you the first video of 1 minute of my manufacturing facility. I hope I have that time. So Sure, ma'am. Sure, ma'am. Okay, so please allow me to share my screen. Already allowed, ma'am, please. Is this video visible to everyone? Yes, ma'am. You will not believe till today, even if I have a QC staff, the final QC quality check is done by me.
मेरे QC के बिना पैकिंग नहीं हो सकती, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक अ चांस ऑन सेंडिंग अ मशीन टू अ कस्टमर एंड देन नॉट गिविंग द क्वालिटी. जब हमने AKVN से लैंड मांगी थी तो AKVN वाज लाइक कि आप 30,000 स्क्वायर फीट ले लो, इतना बड़ा लैंड का क्या करेंगे आप. लेकिन तब मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि आने वाले 5 साल में हमारी कंपनी बहुत ग्रो करेगी, तब मैं वापस से एक नई जमीन थोड़े खरीदने जाऊंगी. आई नीड टू हैव दैट एक्सपेंशन प्लान इन माई माइंड. So, that surety was there in my mind, and accordingly we, chose this land of 1,23,000 square feet. और अभी इसमें सिर्फ 30,000 का शेड ही बना है, बाकी सब खाली है, जिसमें हम अभी वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं ड्यू टू लॉकडाउन. I'll share another video of COVID care center which we did in 3 days time. It was a huge challenge, but ये phase 1 के 600 बेड्स करने के बाद हमको सेकेंड फेज 600 बेड मिला. कलेक्टर साहब ने चौथे दिन ही हमको बुला के अप्रिसिएशन दिया कि भाई अब हमारे पेशेंट्स को ब्लैंकेट्स लग रहे हैं. सो दैट काइंड ऑफ कूलिंग वी वर डूइंग. और फिर हमें जबलपुर कोविड केयर सेंटर का काम मिला. और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब फंड्स की बात आई तो हमने कहा हम लोग स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हैं, वी डोंट हैव फंड्स, तो अब हम इतनी मशीन्स कैसे करेंगे सर. तो बोला आप लोग टेंशन मत लो, रेंटल जो भी होगा हम आपको देते रहेंगे, द वे वी गेट डोनेशन वी विल डू इट. So Pranav ji told me one thing, this is a pandemic time. You can't just give up. Whatever you have stock now, use it. You will get money because your intentions are right. And so we did it. We never backed up because आप कुछ नहीं करने से कुछ तो करना अच्छा ही है. आज नहीं तो कल वो पैसा तो कहीं नहीं गया है. It will come up. So this is a innovative idea of PP ducts which we use to install 36 machines in 3 days, whereby we take 15 days for one machine, and it is giving cooling like excellent. We get patients के हमारे पास messages आते हैं that हम आपको भगवान बहुत आशीर्वाद देगा because the kind of cooling shed है लोहे का राधा स्वामी सत्संग में, और नीचे हम लोग हैं और हम गर्मी में नहीं हैं. So this is the video. कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा. दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो फिर मैं ये दोबारा. जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा. जगजते अंत मिलन बधाइयां, जगजते जगजते अंत मिलन बधाइयां, जगजते जगजते अंत मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सुरमा. सुरमा माने है गम्या नित सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा. So this is what I call innovation. So
I think being an entrepreneur means innovation every day. You can't just, sit back, wait for times to get better. जैसा समय है, जैसी जरूरत है, उसके हिसाब से रोज इनोवेट करें. मुश्किलें बहुत आती हैं और रोज आती हैं और हर बार नए तरह की आती हैं. But still you have to just overcome them and you have to keep going. मैं जब भी कहीं जाती हूँ मैं यही बोलती हूँ कि हर बार एक नई प्रॉब्लम आती है और हम उसको जब झेल के आगे निकलते तो हमको लगता है कि यार बस हमने सीख लिया, अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट अगले दिन फिर एक नई प्रॉब्लम होती है जिसको लेकर आप जूझ रहे होते हो, बट आप रुकते नहीं हो. मतलब ऐसा होता है कि यार ये तो करना ही, अब कुछ भी हो जाए. दैट फीलिंग एंड दैट लेवल ऑफ एनर्जी मेक्स यू गोइंग. और जब आपकी गाड़ी चलने लगती है तो फिर बहुत लोग हैं जो आते हैं और बोलते हैं देयर वाज अ टाइम जब हम इन्वेस्टर के पीछे दौड़ते थे. देयर वर पीपल जिनको हमारे आइडिया पे फेथ था उस टाइम पे, जो जुड़े, जो नहीं जुड़े वो आज पीछे पड़ रहे हैं और हमको नहीं जोड़ना उनको. सो दैट टाइम शुड कम अप फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर, बट इट डिपेंड्स ऑन एंटरप्रेन्योर. मुझे याद है एक बैंकर ने कहा था कि आइडिया पे फंडिंग नहीं होती है, एंटरप्रेन्योर के एनर्जी पे, उसके कॉन्फिडेंस पे फंडिंग होती है. सो दैट is actually true. जब आप अपने जेब का 100% लगा देते हो and there's no back door, तो आप 200% डाल के आगे ही बढ़ते हो. So that's it about Vayu. In very short, I've taken a lot of your time. Thank you so much for making me part of this. Thank you, ma'am. Thank you, Priyanka, ma'am. And I would thank the Vayu, whole team of Vayu, for doing such a tremendous job in this pandemic. And if I just have I have recalled that I have visited the years back in the science exhibition that was organized in the Bhopal, and I came to have this look about the Vayu stall, and from that day only I was very much fascinated towards this Vayu, and today I am fortunate enough to have the Vayu introduction also. And to all the participants, the ma'am has very beautifully told about that if you have the idea, you should pursue that idea fully. And जैसे उन्होंने मैम ने बताया कि आप छोटे छोटे एग्जीबिशंस में या फिर हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो भी, तो आप उसके अनसक्सेसफुल होने का डर बिल्कुल भी मत लीजिए. आप उसको आगे करते जाइए, आप अपनी गलतियों से भी सीखेंगे. साथ ही साथ इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, एंड स्टिल द वायु इज नाउ अ वेल रिकॉग्नाइज्ड नेम ग्लोबली. And if we see about the Priyanka ma'am qualification, then she is the doctorate and MBA in the marketing, and also she is having the inclination towards the academics also. That's why she is the recognized PhD guide of universities, and research scholars are working under her guidance. And also she has rich experience of more than 12 years with various business schools. And as she has already told that she had started her entrepreneur career in 2014, and since then she has been taking care of the HR, production, logistic, financial aspects, each and everything. And there are the list of awards that the Vayu has received, that among them the one most popular is Scotch India Most Innovative Initiative, Mega Launchpad. She has also been featured by the Your Story, the Better India, the Weekend Letter, and her company was selected to represent its innovative technology at St. Petersburg by the government of Russia. Her company was awarded in the top 100 SME award in 2019 by MSME, and she is the only woman entrepreneur from MP to receive the top woman in tech award in 2019 by Business World. She has been awarded as top 30 woman entrepreneur by the Niti Aayog government of India recently, that is in 2020. We are very fortunate to have you, ma'am, and from the behalf of the Sage Group and the IIC team, I once again thank you, ma'am. And thank you so much, Nirja ji. Thank you so much for such a beautiful introduction. I also want to take 1 minute to introduce Pranav ji in absentia. He's not with me. He's a man who always keeps a woman at front. He actually pushed me to become an entrepreneur. I was never an entrepreneur. It was him who was an entrepreneur. He had the idea. He said that, आप दूसरों के लिए इतनी मेहनत करते हो, why don't you work for yourself? और जब मैं आई तो वो करोड़ों की बात करते थे और मेरे मुंह से करोड़ निकलते नहीं थे, और आज मैं बात करती हूँ वो बोलते हैं थोड़ा सा रुक जाओ, बहुत स्पीड में दौड़ रहे हैं. So he is a dropout in engineering.
He left engineering because he was not enjoying theory classes. He wanted more of practical innovation. और आज की डेट में मैं आपको बताऊं कि पहला पेटेंट लेने में हमको 5 साल लगे और आज उनके पास 6 पेटेंट्स हैं. थैंक्स टू खरे सर ने जो बताया स्टार्टअप स्टैंडअप, जो पेटेंट हमने करीब 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च किए हमारे कैपिटल से, आज 1800 रुपए में प्रोविजनल पेटेंट फाइल होता है और 40-45,000 में पूरा पेटेंट पब्लिश की पूरी प्रोसेस हो जाती है. आप स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो तो 6 महीने में तो आपका पेटेंट एग्जामिनेशन स्टेज पे पहुंच जाता है, यू नो. सो दैट काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट. तो कमिंग बैक टू प्रणव जी, इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट, he has worked with companies like Samsung, LG, और जब उसके साथ काम करते थे तो उनको उस वक्त भी आइडिया था कि नहीं यार, ये सेल्स नहीं करना है, कुछ बनाना है. और वो दूसरों को बोलते थे कि तुम क्यों नहीं बनाते हो, वो बोलते थे सर बनाएंगे, इनोवेशन का इंडिया में कोई स्कोप नहीं है. So he left the job and he invented this, and throughout he has been entrepreneur. He is the one जो बोलते हैं ना, एक सक्सेसफुल वुमेन के पीछे जो मैन है, he is the man behind me. And he asked me to lead the company. उन्होंने बोला आप चेयरमैन बनिए, 90% शेयर आपके रहेंगे और आप कंपनी को लीड करिए. And you will not believe, actually practically ये होता है. No big decision is taken without my discussion. We both discuss. And sales और R&D, मैंने कहा आप ये 2 डिपार्टमेंट संभालिए, इसमें आप बहुत अच्छे हैं. बाकी पीछे की HR, लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन, ये जो टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, इसमें मैं पीछे से आपको सपोर्ट करूंगी. But that support of a family member makes the entrepreneur strong to perform in the market. So thanks to him for being there to always motivate me to come. वो मुझे बोलते हैं मैं spokesperson हूँ, so he never comes up in such conferences. He sends me. So I just took this time to introduce him. Thank you so much. Yeah, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. And I would thank him also. But nowadays, I would to all the participants, I would like to give message. If you earlier it was not a facility that you can quit the engineering, but now we have in the new education policy. If any student wishes to pursue his innovation, his dream, he can quit. But later, if he wish, he can also join the degree. That is the new feature of the new education policy. So there is no thing like that. It's the joke about. And if we see about all the participants, I hope that they are very much motivated. And if they have any query, they can just raise your hand with the due permission of Khare sir and Priyanka ma'am. If we have, we can take the queries also. Any questions from the participant side, they can just raise the hand and the host will unmute you. Kohli sir, please, Rishish Jain has raised his hand. Sorry, unmuted him. Rishish, you can ask your question if you have, or we can do one thing. If meanwhile you all can have the questions and if any idea, then we can take it in the last also. He is again muted. He is typing in the chat box, unmute. Rishish Jain. Please unmute. सर स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करें, ये कैसे पता चलेगा, मतलब कि अपने इनोवेशन वगैरह को कैसे डिस्कवर करें अपन? चलिए आप हेलो. यस सर, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, मैं आप जवाब दे देता हूँ. देखिए, आपका जो स्टार्टअप आप सोच रहे हो, स्टैंड अप सोच रहे हो, इनोवेशन सोच रहे हो, आप जब सुबह आँख खोलते हो और रात को सोते हो, उसके बीच में जो देखते हो, जो करना चाहते हो, वो सब हो सकता है. इट इज मेड इन इंडस्ट्री. आप जो भी, यदि आँख खोलने से आँख बंद करने तक जो भी चीज देखते हो, वो इंडस्ट्री में बनती है. और उसमें कुछ भी करेक्शन करना चाहते हो, वैल्यू एडिशन करना चाहते हो, तो कर सकते हो आप. दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ इनोवेशन. एंड आपको लगता है कि जो भी काम कर रहे हैं, अभी अपन बैठ के काम कर रहे हैं, इसमें कुछ इनोवेशन, कुछ चेंज करना चाहते हैं, दैट इज इनोवेशन. हो सकता है कि अपन को अभी लग रहा हो कि अपन बात कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, अब कुछ तीसरा चीज और भी महसूस आप हो सकता हो कि आप महसूस कर सको कि हमने जो सेंट लगाया वो सूंघ सको, दैट इज इनोवेशन.
लेकिन कैसे होगा वो नहीं मालूम मुझे, होगा कैसे ये बात की बात है। लेकिन ये चीज भी हो सकता है कि हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमने जो सेंट लगाया खुशबू आपको मालूम होने दिखे या मतलब समझ में आए, तो वो चीज भी इनोवेशन है। लेकिन कैसे होगा ये नहीं जानता मैं, दैट इज इनोवेशन। ठीक है ना। तो आप स्टार्ट मॉर्निंग, जब आप खोलते हो रात को सोने के समय, जो भी चीज देखते हो, जो भी यूज करते हो, जो भी चीजें सर आप फियर ऑफ लॉस को कैसे कंट्रोल करेंगे, जैसे वो अनसक्सेसफुल हुआ तो? अनसक्सेसफुल हुआ तो अब सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल दो परिभाषा है, वो तो एक बेसिक चीज है, आप अपने कैपेसिटी के अनुसार ढूंढिए ना। हमने कहा कि हमने आपको बताया कि हमको ने जो सेंट लगाया है, जो अभी स्प्रे किया है, वो आपको सूंघे दिखाई दे, ये संभव है। लेकिन कैसे संभव है ये हमें नहीं मालूम। इसके लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, आपके लेवल पर है कि नहीं, ये भी नहीं मालूम मुझे। तो इनोवेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, दैट इज द वन थिंग। आइडिया कहीं से भी जनरेट हो सकता है, इट इज ए फेक आइडिया, हो सकता है फेक आइडिया भी हो, लेकिन इनोवेशन स्टार्ट होता है केवल सोचने और समझने से। मैंने आपको इतना अच्छा उदाहरण दिया है, बेसिक उदाहरण जो बोलते हैं, कि आप उस चीज को समझ सकते हो कि ये चीजें हैं और किस तरह से हो सकती है। मैं तो अभी कल एक वीडियो देखा था तो मैं दिखा सकता था, लेकिन वो इस पर है कि इनोवेशन वे किस तरह से लोग कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इनोवेशन अलग है, आपका डेली डे टू डे नीड अलग है, सेफ्टी इनोवेशन अलग है, बहुत सारे पार्ट हैं इसमें। आप पहले आइडिया जनरेट करिए, फिर बात करिए, तो कोई भी आपको समझा देगा। जो भी इस लाइन में काम कर रहे हैं वो डिसीजन दे सकते हैं कि हाँ इट इज ए गुड बैड, कॉस्टिंग क्या, पैटर्निंग क्या होगी, उसके ऊपर काम हो सकता है। ठीक है ना। चलिए अपन स्टार्ट करें नेक्स्ट। सर प्लीज एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ सर एक्चुअली मैं खुद भी एक पिछले 2-2.5 साल से एक आइडिया पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास में आइडिया है, पर उस आइडिया को मैं सर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। और ये जो आपने अभी लास्ट में बोला कि इसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है, तो सर बस वो जो चीज जो कन्वर्ट करने वाली है, तो वो कैसे आएगी? मतलब सर मैं खुद ही ट्राई करके 2-3 बार फेल हो चुका हूँ। अब वो जो आप बोल रहे हैं कि देखिए साहब, ऐसा है कि सबके सामने बात करना, आइडिया सबके सामने बात करने से अच्छा है आप व्यक्तिगत बात कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हर आइडिया का अलग, हर फेल क्या होता, पास क्या होता, अलग दे सकते हैं। हाँ, अभी आप आइडिया बताओगे 160 लोग सुन लेंगे, इससे अच्छा है कि आप तो सर मैं आपका नंबर ले लूंगा सर से। नंबर मेरा लिखा हुआ है चार्ट में, सबसे पहले लिख दिया था मैंने। ठीक है, हाँ वो मेरे पास है। तो यू कैन चैट, क्योंकि क्या है कि अपन उसके लिए 5 मिनट ये फोरम अलग से बात कर लेना, इट इज यूज हो सकता। मेरे पास बहुत से आइडिया लेके आते हैं लोग। चलिए मैं अभी आपको दूसरे इंटरप्रेन्योर से बात कराने के पहले थोड़ा बता दूं कि आज हमारे बीच जो इंटरप्रेन्योर है वो मोनिका इंडस्ट्री के नाम पर है, और उनके फादर एसएन श्रीवास्तव थे, और उनका लड़का भी आजकल वो काम देख रहा है, मोहित श्रीवास्तव, जो आपसे बात करेगा। मैंने आपको बताऊं कि आज से 12 से 15 साल पहले की याद है कि मैं ऑफिस में था और वो बोले कि मैं एरिया सेल्स मैनेजर हूँ, एमपी का छत्तीसगढ़ दोनों देखते थे, और मेरा ट्रांसफर कहीं हो गया है और मुझे अब वॉशिंग पाउडर डालना है, यूनिट डालनी है। तो मैंने बोले हम तो 100 टन बेचते हैं पर डे, निर्मा मतलब 100 टन तो पर डे बिकता ही है, एमपी छत्तीसगढ़ मिला के 10 ट्रक तो बिकता ही है। तो बोले हमने कहा कितना आप बेच सकते हो? बोले हम 100 टन तो निर्मा बेचते हैं तो अपना भी बेच लेंगे। मैंने कहा आप अपना नहीं बेच पाओगे, निर्मा बेचते हो, निर्मा बिकता है, लेकिन आप अपना जब बेचोगे तो बताओ। उन्होंने नहीं कर लेंगे बात बोलते रहे। जब उन्होंने यूनिट स्टार्ट किया तो पहला वही क्वेश्चन होता था कि आप कितना बेच पाओगे। तब उनको समझ में आया कि जो आदमी उनसे एक ट्रक निर्मा लेता था वो उनका 100 किलो रखने में, सैंपल रखने में आनाकानी कर रहा था। वो भी निर्मा एडवांस में पैसा देते थे उन लोग, और 100 अपना उधार में बेचने में उनको पसीना आता था। तो एक बहुत बड़ी कहानी है, और उन्होंने छोटे से स्टार्ट किया 20-25 लाख के लोन लेके। और उस समय यदि आप बोलो एरिया सेल्स मैनेजर, निर्मा का मतलब होता है कम से कम 1-1.5 लाख का आदमी नौकरी छोड़ के फिर अपना काम स्टार्ट करे और फिर आगे बढ़े। उन्होंने फिर ऐड भी किया, आज सैनिटाइजर भी बना रहे हैं, वॉशिंग पाउडर भी बना रहे हैं, डिटर्जेंट केक भी बना रहे हैं, बहुत से आइटम बना रहे हैं। और फैक्ट्री भी फिर पहले रेंटल थी, फिर मैं खुद को प्रीमाइसेस लेके स्टार्ट किया। और इनोवेशन नॉट इन कि प्रोडक्ट में भी होता है, प्रोडक्ट के साथ मार्केटिंग में भी होता है। मार्केटिंग में इनोवेशन बहुत पैसा दिखे जाता है, ये एक पहलू सबसे बड़ा है। मार्केटिंग का इनोवेशन यदि किसी को समझ में आता है तो बहुत अच्छी चीज है। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं कि आपको सन 80 के आसपास की याद होगी कि अपने यहाँ पर जो क्या कहते हैं
शरबत बनते थे घर में, उसमें उस समय बॉटल में आता था वो क्या कहते हैं जो भी शरबत थे, और उसको बना के अपन देते घर में यूज करते थे, चाहे रूह अफ़ज़ा हो चाहे कोई भी हो। और सबसे पहले उन्होंने रसना वालों ने चालू किया कि साहब हम इसको बॉटल की जगह सैसे में देंगे। तो बात हुई कि क्यों देंगे, बोले बॉटल आती है 100 रुपए का, और उसमें जो चीज कंटेंट रहता है बोले उसमें 3 चीज रहती हैं। एक तो कंसंट्रेटर रहता है जो भी आपका क्या कहते हैं पल्प का है, प्लस पानी होता है, प्लस शक्कर होती है, और प्लस बॉटल होती है। तो बोले शक्कर आदमी के घर में है, पानी आदमी के घर में है, तो इनको पैक नहीं करना है तो बॉटल भी घर में है, उसके ऑलरेडी है कांच की बॉटल, उस समय कांच में ही चलता था। तो बोले हम लोग खाली कंसंट्रेट जो है पाउडर बना के बेचते हैं, वो भी 10 रुपए में चालू किया था उन्होंने, 10 रुपए के आसपास। आप सोचो उससे पूरा मार्केट दूसरी इंडस्ट्री का जितना था खत्म हो गया। तो इनोवेशन नॉट इन प्रोडक्ट, इट इज ऑल्सो इन मार्केटिंग प्लेस में भी होता है, और किस तरीके से होता है ये बहुत बड़ा एक इशू है। और जो मार्केटिंग में जो सबसे ज्यादा पैसा मिलता है उसी बात का मिलता है कि हाउ टू सेल द थिंग एंड हाउ टू गेट द प्रॉफिट। ठीक है, तो मैं मोहित श्रीवास्तव जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उद्यमता विकास केंद्र की ओर से, सेडमैप की ओर से, और यूनिवर्सिटी की ओर से। और आप क्योंकि आप आए हैं तो थोड़ा सा अपने बारे में और अपने यूनिट के बारे में और अभी अपने बिजनेस प्लान के बारे में और कैसे सफल रहे, और दिक्कतें बहुत सी रही हैं, सुनो से के बात करें। Sure, sir. Sure. Thank you so much, sir. Hello, everyone. Myself, Mohit Shrivastava, from Monamica Industries. I did my master's from University of Greenwich, London, and came back after doing job there for 1 year and joined my father's business. And now we are into business for last 17 years, and I joined in 2015. और मैं कई बार ऐसा सोचता हूं कि जैसे सर ने अभी बोला, मैम ने भी बोला था, सर ने भी बोला कि है ना, इनोवेशन आप जो सुबह से रात तक देखते हैं वहीं कहीं से निकलता है। और परसों जैसे आप लोगों को याद होगा नरसिंह जयंती थी, मैं आपके साथ एक फोटो शेयर करता हूं तो आपको पता चलेगा। जस्ट अ सेकेंड। ये दिख रही है आपको फोटो? यस सर। ओके, तो ये नरसिंह जयंती थी, और मुझे परसों इनके दर्शन करने के बाद ध्यान आया कि सही में ये इनोवेशन कोई नई चीज नहीं है। इनोवेशन इस समय से होता आ रहा है कि है ना, जो आपके सामने प्रॉब्लम्स हैं आप उसके जो भी सॉल्यूशन दे सकते हैं, दैट इज इनोवेशन। तो मतलब अगर हम बोलें कि है ना इनोवेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो विष्णु बिल्कुल सही जवाब होगा कि हाँ, विष्णु जी से ही शुरू हुआ होगा। रीजन कि उनके सामने ये अपॉर्चुनिटी थी, ये प्रॉब्लम था सबसे बड़ा कि है ना वो दिन में मार सकते थे, ना वो रात को मार सकते थे, ना वो अंदर मार सकते थे, ना वो बाहर मार सकते थे, ना एक इंसान के तौर पे मार सकते थे, ना जानवर के तौर पे मार सकते थे। सो उन्होंने है ना नरसिंह अवतार लिया, और उनको सिंपली उनका गोल था कि है ना हिरण्यकश्यप मरना चाहिए, तो ही केम विद द सॉल्यूशन। तो ऐसा ही होता है कि है ना जो दिन भर में देखते हैं उसी से है ना सॉल्यूशन निकलता है, और सोसाइटी की जो भी प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं। वैसे मैं बता दूं कि हम लोग डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग में तो है ही, पेस नाम का एक ब्रांड है, और पेस हमारा ओरिजिनल ब्रांड है 2004 से, और मेरे वापस आने के बाद लंदन से मैंने वहाँ पे यूनिलीवर के कैंपस विजिट किए, और बहुत सारी कंपनियों में जाने का, इंडस्ट्रियल विजिट्स के दौरान जाने का मौका मिला। तो मैंने यूनिलीवर का कैंपस देखा, पीएनजी की फैक्ट्री देखी, और मुझे लगा कि है ना डिटर्जेंट तो बनता आ रहा है, 50 साल से निरमा बना रही है, 40 साल से घड़ी बना रही है, मैं क्या अलग कर सकता हूँ जिससे कि है ना हम लोग और बेटर कर सकें। प्लस डिटर्जेंट के साथ साथ अभी पिछले 4-6 महीने से हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, UPM 365, और आई एम ग्लैड टू शेयर कि है ना वो स्टार्टअप इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड हुआ है, और अभी उस पे बहुत बेसिक काम चल रहा है। जैसे सर ने बोला, मैम ने बोला कि है ना
प्रॉब्लम आती है हम लोगों को कि है ना, और एक और किसी का ऋषिश का शायद क्वेश्चन था या किसी का क्वेश्चन था कि है ना, मेरे पास आइडिया है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ और एक लॉस का मुझे डर रहता है। तो यूपीएम 365 बेसिकली यूज प्लांट मशीनरी फॉर 365 डेज, ये इसका पूरा नाम है। और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ पहले प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले बेस के बारे में बताता हूं मैं आपको कि बेस लास्ट मंथ मतलब 2 महीने पहले, लॉकडाउन से पहले लद्दाख तक पहुंच चुका है। एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस कि उसकी यूएसपीज की वजह से वो आज पैन इंडिया अवेलेबल है। और हम लोग जो उसके अंदर यूएसपी डाली गई है कि डिटर्जेंट तो बनते आ रहे थे, सर का सेडमैप का है ना बहुत बड़ा रोल रहा है पापा को डिटर्जेंट इंडस्ट्री में लाने का। तो उसमें है ना कॉस्टिक से, आपको पता होगा बेसिक इंग्रेडिएंट होता है डिटर्जेंट का कॉस्टिक, लेकिन इनोवेशन के तौर पे प्रोडक्ट इनोवेशन जिसकी बात हो रही थी, हम लोगों ने उसमें है ना नो कॉस्टिक, नो ब्लीच और नो फॉस्फेट। तो जो कॉस्टिक होता है बेसिकली आपको पता होगा कि टॉप 3 हैजार्डस केमिकल्स इन वर्ल्ड में आता है कॉस्टिक, और वो हाथों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। तो हम लोगों ने जो बेस बनाया उसमें कॉस्टिक नहीं था। फिर ब्लीच, आप जो शर्ट यूज करते हैं आप देखेंगे उसको मैं फिर से मैसेज किया, उसको मैंने बोला था कि 12 के पहले कर देना, अभी मैंने फिर मैसेज किया है ना, पूछता। तो आपकी शर्ट पे लिखा रहता है डू नॉट यूज ब्लीच, तो हमने इसमें ब्लीच भी नहीं डाला। फिर फॉस्फेट, आपको जानकर हैरानी होगी, विल बी अमेज्ड टू नो कि यूनिलीवर या पीएनजी ये सब मल्टीनेशनल है, ये बाहर फॉस्फेट्स यूज नहीं करती क्योंकि दूसरी कंट्रीज में बैन है। लेकिन इंडिया में जो टाइड मिल रहा है, जो आप एकदम से देखते हैं कि वो सफेद पट्टा आता है, दैट इज ब्लीच एंड दैट इज फॉस्फेट, जबकि वो दूसरी कंट्रीज में बैन है। तो लेकिन इंडिया में बैन नहीं है तो चलता आ रहा है। और ये कितना हार्मफुल है तो उसके लिए मैं बता दूं कि फॉस्फेट बेसिकली एक्वस एनिमल जो होते हैं पानी में रहने वाले जीव, उनके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और हम लोगों ने एक सोशल कॉज के तौर पे ये तीनों प्रोडक्ट के बिना एक प्रोडक्ट डेवलप किया, और बेस में ना कॉस्टिक है, ना ब्लीच है, ना फॉस्फेट है, तो भी इसकी क्लीनिंग आप जो भी नेशनल पेयर्स की बात करें या मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स की बात करें, उसके सामने भी बेटर है। और फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा स्टार्टअप है यूपीएम 365, जैसा आप देख सकते हैं इट्स अ स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप, और हम लोगों को अभी लास्ट ईयर ही इसका रिकॉग्निशन मिला है 3-4 महीने पहले, और हम लोग इस पे अभी काम कर रहे हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा इसके बारे में। ये हमारी प्रोडक्ट रेंज है, पिछले 4-5 साल में पूरी रेंज डेवलप करी हम लोगों ने। सर ने जैसे बताया कि सिर्फ डिटर्जेंट पाउडर से शुरुआत हुई थी, वो भी एक छोटी सी मशीन से और जरा से कैंपस में, मतलब कैंपस भी क्या गोडाउन होता था, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा बनाने की और सोसाइटी को कुछ बेटर देने का हमेशा से पापा का इंटरेस्ट रहा है और मोटिव रहा है। तो ये प्रोडक्ट डेवलप होते गए और नाउ इट्स कॉम्पिटेंट टू बेस्ट प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन मार्केट। और अब डिशवार और डिशवॉश लिक्विड भी हम लोग बनाते हैं। और आप अगर ऊपर देखें तो इसमें जो लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है वो सारे स्टेट्स में हम लोग अवेलेबल है, मींस हिंदी, देन उर्दू दैट इज कश्मीर, देन कर्नाटक, देन गुजराती, पंजाबी एंड उड़िया, सो इन उड़ीसा। इट्स आवर कैंपस। और अभी हम लोगों का एक फैक्ट्री और बन रहा है नेमावर रोड पे। और जैसा मैम ने बोला कि जिस तरह से उनको इम्पैक्ट किया है, सबके बिजनेसेस को ओवरऑल इम्पैक्ट ही किया है कोरोना ने, किसी को अच्छा तो देके नहीं गया। तो अभी हम लोगों ने उसको रोक के रखा हुआ है, एक्वायर किया, और जैसे ही प्लान था कि बनाना है और बस वही सर मुंडाते ही ओले पड़ गए, तो वही हुआ। और फिर उसके बाद हमारे इनोवेशंस, जैसे मैंने आपको बताया कि नो ब्लीच, नो फॉस्फेट्स, नो कॉस्टिक। देन और हाँ, एक और इसका एक यूएसपी है कि आप लोगों का, कुछ लोगों का जैसे 11th-12th में केमिस्ट्री बैकग्राउंड रहा होगा या अभी भी होगा, तो आपको पता होगा हर एक केमिकल की शेल्फ लाइफ होती है। तो डिटर्जेंट की एक शेल्फ लाइफ होती है, और हमने इसमें वो पॉलीमर्स और वो केमिकल्स यूज किए हैं जिसकी वजह से इसकी शेल्फ लाइफ 5 साल हो चुकी है।
और ये जैसा आज परफॉर्म करेगा वैसा ही 5 साल बाद भी परफॉर्म करता है। और एक और इसमें एक अच्छा हम लोगों ने डिटर्जेंट केक में इनोवेशन दिया कि आप देखते होंगे कि हम अगर पानी में डिटर्जेंट केक रख दें तो वो गलता ही रहता है। हम लोगों के इसमें एक ऐसे इनोवेशंस में हम लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट यूज किए जिसकी वजह से ये ऑन ऑफ फॉर्मुलेशन पे काम करता है, और आप जैसे ही इसको पानी से दूर करेंगे ये गलना बंद होता है, और जैसे ही आप उसमें पानी डालेंगे इंस्टेंट स्टार्ट होता है। फिर हमारा एक और प्रोडक्ट है बफेलो बाथ, और आई एम प्राउड टू शेयर कि ये अमूल में हमारा सबसे बड़ा इंडिया का कस्टमर अमूल है, मतलब आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और अपने को पता है कि अमूल इज प्राइड ऑफ इंडिया, मतलब एक कितनी बड़ी केस स्टडी है अमूल, और वो लोग हमारे प्रोडक्ट यूज करते हैं बफेलो बाथ। बेसिकली ये एक डिटर्जेंट केक है फॉर एनिमल्स, जिसमें कि है ना वो जानवरों को प्रॉब्लम होता है लाइस और लीक्स का, जिसकी वजह से उनकी मिल्क गिविंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो हम लोगों ने ये प्रोडक्ट अमूल के साथ मिलकर डेवलप किया कि उनकी ये रिक्वायरमेंट थी और हमने उस पर काम किया, और ये इकोनॉमिकल भी है प्लस सेफ और इफेक्टिव भी इतना है कि कोई नॉर्मल इंसान भी इससे हाथ धोकर खाना खाने बैठ सकता है और उसको कुछ नहीं होगा। और अभी इंडिया की बहुत सारी मिल्क डेयरीज जो हैं, बड़ी बड़ी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, वो वहाँ के जो वेटरनरी ऑफिसर्स होते हैं वो इस प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब करते हैं। बेसिकली दे अपॉइंट बीओस इन देयर रूरल एरिया, तो वो लोग प्रिस्क्राइब करते हैं इस प्रोडक्ट को। ये भी एक अच्छा इनोवेटिव प्रोडक्ट हम लोगों ने डेवलप किया है। फिर उसके बाद अब सबसे बड़ा चैलेंज हमारी सोसाइटी का एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हम रोज पढ़ते हैं पेपर्स में, न्यूज़पेपर में, टीवी में देखते हैं कि इतना एनपीए हो गया, उतना एनपीए हो गया। और असल में एनपीए क्या है कि जैसा एक कंटेस्टेंट ने बताया था कि है ना मेरा आइडिया फेल हो गया, या हम में से बहुत लोग ट्राई करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा होता है लेकिन शायद चीजें वैसी नहीं हो पाती है, वो सस्टेन नहीं कर पाता है। तो उसके बाद क्या, प्लान बी की कोई बात नहीं करता, आजकल हम हमेशा सुनते हैं। तो बेसिकली यूपीएम 365 प्लान बी बनकर आएगा। प्लान बी ये है कि अगर मैं कोई इंडस्ट्री लगाता हूं और मैं नहीं चला पाता हूं तो उसका एग्जिट क्या है। तो एक एग्जिट तो ये होता है कि है ना मैंने मेरी इन्वेस्टमेंट लगाई, मेरा घर बेच दिया, मैंने सब कुछ अपना झोंक दिया, और अब आज मैं उसको एग्जिट करता हूं, नहीं चला पाया प्रोडक्ट, तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। लेकिन यूपीएम 365 विल हेल्प कि आपके हाथ में कुछ आए और कुछ अच्छा है। तो हम लोगों ने यही एक हमारा जो नया स्टार्टअप है, ये स्टार्टअप इंडिया से रिकॉग्नाइज हुआ है और हम लोग इस पे अभी काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये है कि जैसे मैम ने बताया कि है ना इन्होंने अपने पुराने कैंपस से नए कैंपस में गए, तो इनकी कुछ मशीन्स तो होंगी जो इनके अब किसी काम की नहीं है, या फिर हम कई बार होता है अपग्रेड करने की कॉस्ट नहीं समझ पाते। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डेवलप किया है जिसमें आप कुछ मत कीजिए, आप अपने जो मशीन आपको बेचनी है उसकी फोटो क्लिक कीजिए, अपलोड कीजिए, और आपको जो भी है ना उसमें इंटरेस्टेड होगा वो आपको कॉल कर सकता है या आपसे कांटेक्ट कर सकता है। तो बेसिकली ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे कि आप नई या पुरानी दोनों मशीन्स बेच सकते हैं। अब और एंड इट्स फ्री, इट्स फ्री, और अभी इस पे काम चल रहा है। तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज ये है कि हम लोगों ने करीबन 40 इंडस्ट्रीज है ना टारगेट करी हैं, जो ओवरऑल सभी आ जाते हैं जिसके अंदर कि मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा नमकीन बनाकर बेच सकता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो हम लोग जो सोचते हैं वो जब तक है ना ग्राउंड लेवल पे आता है वो वैसा काम नहीं हो पाता। तो अब मुझे क्या करना है कि है ना मैंने जो 25 लाख रुपए लगाए वो, क्योंकि ये भी है कि अगर मैं एग्जिट करता हूँ तो बैंक ऑक्शन में ही खत्म हो जाती है, या फिर है ना वो किसी मतलब वो ना बैंक को कुछ मिलता है उससे, क्योंकि वो थोड़े टाइम में अपने आप डिटोरिएट होके नील वैल्यू हो जाती है, उनकी सड़ जाता है वो लोहा होने की वजह से। लेकिन अगर कितना अच्छा हो कि अगर है ना मैं एग्जिट करने के लिए मेरे पास ये ऑप्शन हो कि मैंने 25 लाख की खरीदी थी, कोई एक नया है जो ट्राई करना चाहता है और उसको अगर ये 10 या 12 लाख रुपए में मिल जाए तो उसको 25 लाख रुपए भी नहीं लगाना पड़ा, और जिसने बेचा है उसको 25 के 12 तो एटलीस्ट मिल ही गए। तो ये बेसिकली हमारा आइडिया है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं कि हम लोग डिटर्जेंट इंडस्ट्री में जब अपग्रेड करते हैं हमारी पुरानी मशीन्स कबाड़ हो जाती हैं, और हमें कई बार लगता है कि ये मशीन किसी और के तो काम आ ही सकती थी, जैसा बुक में होता है कि हमने पढ़ ली लेकिन किसी और के तो पक्का काम आ सकती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसमें है ना कुछ
फीचर्स बनाए हैं, जैसे आप ये बीच वाली स्लाइड पे देख सकते हैं कि इट्स फ्री टू डाउनलोड, और इसमें हाँ एक और चीज है कि बायर्स और सेलर्स रजिस्टर होंगे तो कोई फेक नहीं आएगा। देन डार्ट ऑन इंडस्ट्री करके एक ऑप्शन इसमें हम लोग दे रहे हैं, जिसमें कि मुझे लगता है कि मैं कुछ 4 इंडस्ट्रीज या 3 इंडस्ट्रीज हैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इंटरेस्ट है टॉय बनाने में, या मुझे मेरा इंटरेस्ट है डिटर्जेंट, तो मैं उनको डार्ट कर सकता हूं उसमें, और फिर मेरे को जैसे ही उसमें कुछ 3 मशीन्स में से लिस्टिंग होती है तो मुझे नोटिफिकेशन आएगा। है ऑप्शन हम लोग जो डालेंगे, लाउंज एक एरिया रहेगा जिसमें आपको ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशंस और शोज या डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बारे में या प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के बारे में पता चलता रहेगा, अपलोड होती रहेंगी। आप भी उसमें अपना डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डिटर्जेंट इंडस्ट्री का थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूं तो मैं उसमें डाल सकता हूं ताकि कोई और एस्पिरेंट के लिए काम आ सके। फिर उसमें है ना आप फेवरेट शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं कि आपका कोई मशीन आपको पसंद आई है, फॉर एग्जांपल फ्राइंग मशीन आपको पसंद आई है, सो यू कैन डार्ट इट एंड सेव इन योर फेवरेट्स। फिर चैट का ऑप्शन है कि मेरी कोई इंडस्ट्री लिस्टेड है और आपको वो मशीन पसंद आई है तो आप मुझसे चैट कर सकते हैं, एंड इट्स इजी टू शेयर ऑल्सो। और फिर उसके बाद ये हम लोगों के बारे में कुछ है कि हम लोगों ने कैसे स्टार्ट किया। माय फादर वाज इन मार्केटिंग फॉर 31 years और 30 years, मतलब उनको टोटल एक्सपीरियंस 30 years का हो गया है, और अभी वो हम लोग पिछले 15-17 साल से डिटर्जेंट बना रहे हैं और अभी नई नई चीजें जोड़ते जा रहे हैं। और हाँ, एक और मुझे एक अच्छी चीज लगी कि हमारी कंट्री अब एक पॉइंट पे आके अटकी है जो बहुत टाइम पहले ही आ जाना चाहिए था, वो है आत्मनिर्भर भारत। और मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत तब तक नहीं हो सकता जब तक बहुत सारी इंडस्ट्रीज ना आ जाएं। आत्मनिर्भर तभी हो पाएंगे, नहीं तो हमें चाइना या कोई भी ऐसी कंट्री से इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। और जब आप सोचिए कि हर एक सेज का बच्चा ये सोचे कि मैं एक इंडस्ट्री डाल सकता हूं और मैं लोगों को रोजगार दूंगा या लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा, आप सोचिए कि आपकी इंडस्ट्री डालने की वजह से आप 10 लोगों को भी, अगर 5 लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट देंगे तो आप कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, प्लस आप एक प्रोडक्ट अलग अलग लोग बनाएंगे तो सेज की इंडस्ट्री के एलुमनाई ही है ना एटलीस्ट 15-20 प्रोडक्ट्स के साथ बाहर आ सकते हैं। तो हम लोगों को आत्मनिर्भर बनना है तो इंडस्ट्रीज का सेटअप होना बहुत जरूरी है, और इसमें टाइम लगता है, आइडियाज होना आना जरूरी है। और हाँ, एक और चीज है कि हम अगर वही घिसे पिटे आइडियाज के साथ आते रहेंगे तो हम फेल होते रहेंगे, लेकिन अगर कभी हम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के साथ आएंगे या इनोवेटिव प्रोसेस की तरह आएंगे तो ऑब्वियसली स्काई इज द लिमिट। ये जैसा मैंने आपको यूपीएम के बारे में बताया कि उसके बेसिक फीचर्स क्या है, बायर्स और सेलर रजिस्टर्ड होंगे तो उसमें फेक नहीं होगा और फ्री टू डाउनलोड रहेगा। और स्टार्टअप लाउंज के बारे में मैंने आपको बताया, डाटा और इंटरेस्ट के बारे में बताया, शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में बताया। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट हैज बीन अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑल esteemed. Thank you so much. Thank you, Mohit sir, for your wonderful and beautiful presentation about your product. For all the participants, I would like to brief you that Mohit Srivastava sir is a young entrepreneur that you all can see. Mostly he has discussed about his FMCG products that they are manufacturing and the unique product that unit platform that they have provided, that is UPM 365, that is the use plan and machinery. और मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जिनके पास आइडिया है, कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई मशीनरी कॉस्टली है या उसके कुछ सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो आई थिंक दिस UPM 365 वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम, कि वहां से वो अगर कोई अपना यूज्ड प्रोडक्ट बेच रहा है या हम कोई यूज्ड मशीनरी मिल रही है तो वो उनको कुछ बेहतर कॉम्पिटिटिव प्राइस में भी मिल जाएगी और कम कैपिटल में वो चीज उसको स्टार्ट कर सकते हैं। इफ आई एम राइट मोहित सर? बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट।
जी sir. And about the Mohit sir, he holds the MBA degree from the International Business from University of Greenwich, London, and also they have the leading FMCG products evolver for the entrepreneurs since last 2004, and also the unique product that I found, that is the detergent cake for the animals. Also they have the 5-year shelf life product also, that is the unique thing, that is the detergent that is they are producing they have. I request Dinesh Khare sir to please, if he allows, then we can have any queries on the or any other questions from the participants end. हेलो, जी ये सर. आपको जो आज हमने दो लोगों का बात कराया है इनोवेशन के लिए, या पैनल डिस्कशन में दोनों लोग थे, ये एक आइडिया है, नॉट कि यही चीज आपको करना है। ये एक बेसिकली आइडिया है कि इस टाइप के लोग प्रोडक्ट करके जो कर रहे हैं दोनों, मतलब क्या कहते हैं, उनके पास पार्ट वो भी है कि कैसे सक्सेस हुए और कैसे फेलियर की चिंता है और कैसे आगे बढ़े। ये एक आइडिया जनरेशन के लिए है। एक्चुअली में आप कॉपी पेस्ट मत करिए, आप दूसरा चीज सोचिए और कुछ ढंग से सोचिए और अच्छे से सोचिए। सोचने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आइडिया जनरेशन फेक की जगह थोड़ा सा रियलिस्टिक वे में करिए तो इट इज यूजफुल। आइडिया जनरेशन बहुत अच्छी चीज है और होना भी चाहिए, और कॉलेज लेवल पर या किसी भी लेवल पर हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते अपन। और ना इसमें एज बार होती है कि ये 50 साल वाला भी नहीं कर सकता है या 25 साल वाला ज्यादा अच्छा करता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। इनोवेशन होना चाहिए, करना चाहिए। और इनोवेशन क्या है, जो प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन ही इनोवेशन है। प्रॉब्लम जो आएगी आपका, उसका सोल्यूशन ही इनोवेशन कहलाता है। एक्चुअली में कहना चाहिए कि जो हमारी डे टू डे प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन हम किस ढंग से कर सकते हैं, वही हमारा इनोवेशन है। और अभी तो लॉकडाउन में लोगों ने कहाँ से किस किस तरह से इनोवेशन करके अपने बिजनेस को, आइडिया को जनरेट किया है और उसको कल्पना की है, वो बहुत आगे स्तर पर हो गया है। और उसको और आगे स्तर पे करने की बात करें तो बहुत आगे स्तर पे अपन कर सकते हैं। इट इज ए कमिंग फ्यूचर। आपका जो आइडिया है उसको जनरेट करिए और बहुत अच्छे से करिए। और कोई समस्या हो तो आप कॉल कर सकते हैं या बात कर सकते हैं, या अपन आगे उस चीज पर डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, अभी तक इसमें हमने आपको जो बताया है उसमें कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चंस येट? Participants can raise their hand, we'll unmute them if they have any questions. We have one question from the participant Ujjwal Kumar. He is asking the question to Mohit sir that if detergent cake अगर छोटे पैकिंग में ना देके शॉप्स में रिफिलिंग का ऑप्शंस रख दिए जाएं तो क्या क्वांटिटी की प्राइसिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी? जैसे जो बहुत हद तक ओपन डिटर्जेंट केक्स भी मार्केट में मिलते हैं। आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट दैट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है उज्जवल आपका, लेकिन एक छोटा सा रीजन देता हूं। आप कभी सोचिए कि आपने एक प्रोडक्ट निकाला उज्जवल, और आपने ये आइडिया दे दिया कि है ना लूज पैकिंग बेचना शुरू कर दे रिटेलर, तो क्या आपको लगता है कि है ना उज्जवल कोई और नहीं बेच सकता? तो पैकिंग एक बहुत बड़ी चीज है कि घड़ी आज घड़ी की वजह से तब तक है जब तक वो घड़ी पाउडर की पैकिंग में है। वो जैसे ही पाउडर फटता है और वो लूज होता है, वो एक नॉर्मल डिटर्जेंट है। और वो जितना अमिताभ बच्चन आके बोलते हैं कि घड़ी घड़ी लो घड़ी लो, वो वहीं पे खत्म हो जाएगी बात। रिटेलर बल्कि अपने इंटरेस्ट, अपने प्रॉफिट मार्जिन के लिए वो सबको प्रोडक्ट यही बोल के पूछेगा ये उज्जवल पाउडर है, आप ले लो। तो ये नहीं हो सकता, इट इज नॉट फिजिबल। हम एक और चीज में बोलूंगा, हम सब जानते हैं कि है ना कौन सा एक प्रोडक्ट लूं जो बहुत ज्यादा रनिंग प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल कोका कोला। कोका कोला अगर है ना रिफिलिंग में आ जाए कि है ना मेरे पास का राकेश किराना उसको रिफिल करके ग्लास में, नॉर्मल लोहे के ग्लास में दे सकता है, एसएस की ग्लास में, पर क्या आपको लगता है आप लेंगे?
आप वो पैकिंग जो होती है जिसको 100 साल लग गए हैं मार्केट बनाने में, आप उसकी वजह से कोका कोला लेते हैं। यस सर, थैंक यू सर। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चंस? हमारे जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म देम, जैसे जो अभी फर्स्ट ईयर के रेशिश की क्वेरी थी कि इनोवेशन है या हमारे पास आइडिया है तो हम कैसे उस चीज को करें, to inform to all the participants of this age group, we have a innovation cell, we have the entrepreneurship ED cell also. तो आप वहां पे अप्रोच करेंगे, जो भी हमारे आईपीआर के हैं, आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पेटेंट फाइल के लिए प्रोसेस करना है, कुछ भी चीजों की हेल्प होगी, हमारे पास पूरे सब कोऑर्डिनेटर्स हैं, सब मेंबर्स हैं, दे आर वेरी वेल एंड दे कैन गाइड यू। और उसके बाद हमारे पास, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास दिनेश खरे सर जैसे गाइड के करने के लिए एमिनेंट स्पीकर्स भी हैं, और साथ साथ कि आपके पास सक्सेस स्टोरीज भी हम डिस्कस कर पा रहे हैं, जैसे वायु की प्रियंका मैम ने कितने अच्छे से उन्होंने बताया हुआ है आपको, मोहित जी ने भी आपको कितने अच्छे से बताया है कि वो कैसे उन्होंने क्या आइडिया लिया था और कैसे वो आगे बढ़े हैं। With that, I like to invite a convener of the IICA, Dr. Dinesh Kumar Kohli sir, to give the vote of thanks. Thank you, sir. Am I audible? Kohli sir, before that, I also want to thank Dinesh ji. So Dinesh Khare ji, thank you very much. Thank you very much, Priyanka madam, Mohit sir. It's really a nice session from you both sides, and I am really thankful to Dinesh ji. In a short span of time, he arranged both of you. And thank you to all of you for your valuable time. Now, Kohli sir, please. Okay, so I think on behalf of Sagar Institute of Research and Technology, Institution Innovation Council, first I would like to thanks to all the eminent speakers, Mr. Dinesh Khare sir, who is the regional coordinator from SADMAP. Then Dr. Priyanka Mosmar ma'am, she is from Bayou, and third Mohit Srivastava sir, he is CEO from Monimika Industries. I think on one request they have given time for delivering their session, this panel discussion, as well as to guide our students with their experience regarding entrepreneurship, etc. And I have seen that they have discussed and answered the query of the students, and I have seen Dr. Priyanka ma'am has shared her experience in his journey of this startup, how challenges she has faced. Mr. Mohit sir also discussed about their products and whatever the innovation they have done, what they are doing, and motivated our students, as well as regional coordinator, our Dinesh Khare sir also told various things, various guidelines, as well as inspiration to our students. So I want to thank you, hearty thanks to all of you for giving time and guiding our students. Definitely, our students are benefited your talk as well as got inspired, and they will move towards in this direction. Because we are also having an institutional innovation council, and we are also working it with a team. There are different coordinators in this team also. There are the team of the around 50 people, and we are working on that with the different themes. We are having innovation, then startup, IPR, design thinking, etc. And a whole team is working in that direction. So definitely today's session, today's talk will definitely will enrich it or will strengthen it. I would like to thanks to our chairman or CMD or chancellor of this SAGE group, Engineer Sanjeev Agrawal sir. He is the key motivator for such type of programs and the development of the SAGE group as well the institute. Also, I would like to thank both the ED ma'ams, Ms. Shivani Agrawal and Ms. Sakshi Agrawal, who are the dynamic executive directors. They are working very hard in this group. And our VCM, Dr. Prashant Jain sir, Director of our institute, Dr. Rajesh Srivastava sir, my all team,
all the coordinators, Professor Palash Jain sir, Professor Niraj Gupta sir, Dr. J.K. Jain sir, Dr. Irshad Ahmed Khan sir, and all the other members who are directly or indirectly working as the member for the IIC team. I would like to thanks to all the participants within SGI or outside SGI who has taken their interest and took part in this panel discussion with entrepreneurs as well as innovators to make this program successful. And I would also like to thank all the faculty members of the institute or the department, particularly Niraj Gupta sir, who has coordinated the program, as well as I would like to thanks to Jigyasi sir, who has worked a lot, communicate with the experts to make this program successful. And with these words from our college side, we are having the token of love in the form of certificate of appreciation. So first, I would like to present this certificate of appreciation to Mr. Dinesh Khare sir from this our institute or IE side. Please sir, accept our certificate of appreciation from IE side. Dinesh Khare sir, please. Okay. Okay. Yeah. Thanks. Next one, sir. Hello. Yeah, sir. Thanks. Thanks to you, sir. Yes, Niraj sir. Yes, sir. So now I have shared the for the Mohit, sir. Yeah. So again, I welcome and congratulate Mr. Mohit Srivastava sir. So please, sir, accept the certificate of appreciation from our II side or SEDUR side. Please, sir, accept it. Thank you so much, sir, for this honor and appreciation. Welcome, And sir. it has been a great time. Thank you so much. Thank you, sir. And last but not least, this is the token of love to Dr. Priyanka ma'am. She has given a very good experience and definitely it was very inspiring for our children. They will move in the direction because we know that the innovation is the backbone for the development of our nation also. So definitely it is the need of the today's time. So please, ma'am, accept this certificate of appreciation or token of love from institute side. Then please. Thank you so much, sir. And I must congratulate your group because this is again innovative. I've been part of many sessions like this, but this kind of e-token of appreciation is excellent, innovative idea from your group. So congratulations to you and your team also. Thanks, ma'am. We will be connected Thank you, together. ma'am. Thank you everyone, and we'll soon, when the lockdown and all the things will be and as per the schedule or as per the open lockdown will open, soon we'll be sharing this certificate of appreciation in hard copy also to all our eminent speakers. And if we find, and if once again I thank you for being the wonderful audience to all the participants, and again to the speakers for sparing their time. Thank you once again. Thank you. Thank you. I think with this, we are going to end this program.